Okay, namaste and good evening, everyone. Welcome to Tuesday lecture series presented by Vigyan Prasar for Vigyan Prasar Network of Science Clubs. I'm Dr. Nidhi Srivastava and I'm project scientist here at Vigyan Prasar, and it's my privilege to welcome the distinguished panelist of today's session, Dr. Santosh M. Pingle, scientist from Hydrological Investigation Division of National Institute of Hydrology, Roorkee. Dr. Arvind C. Ranade, Senior Scientist and National Coordinator of WIPNET Clubs in Vigyan Prasar, and Shri Sachin Narwadia, sir, Scientist from Vigyan Prasar. I also welcome all the club members who have joined us for this session today. Thank you everyone for taking time from your preoccupied schedule for this session today. As most of you are aware that Vigyan Prasar has started a Tuesday lecture series for our WIPNET clubs, and through this we wish to provide you a platform where you can learn and also interact with the experts of various fields and areas of science and technology. Last week we had our first webinar, which was on earthquake genesis and mitigation. In this series, today is our second lecture, and the topic of today's lecture is importance of hydrological cycle and its implication on humans' life. The talk will be delivered by Dr. Santosh Muralidhar Pingle from National Institute of Hydrology, Roorkee. The talk will be of 30 to 40 minutes, followed by interaction session. If you have any queries regarding the presentation, the Zoom participants can type it in the chat box, and the Facebook participant can write it in the comment section of the Facebook page. We will try to answer all of them once the talk will completed. Now, I would like to invite Dr. Arvind C. Ranade, sir, National Coordinator of WIPNET Clubs, to introduce our today's speaker. Arvind, sir. Thank you, Dr. Nidhi. I think I just request Vipin to have a spotlight. The person who is in the speaking can only be on the screen, so that this will help the others to understand who is the speaker. Yeah, so it's on speaker view. Fine. सभी को नमस्कार. मैं आप सभी को मंगलवार लेक्चर सीरीज में आप सबको स्वागत करता हूं. विज्ञान प्रसार, जैसे आप सभी जानते हैं कि विज्ञान प्रसार जो संस्था है वो हमारे संस्था के माध्यम से आप लोग सब जुड़े हैं, और एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के कारण आप जिस प्रकार से विज्ञान का कार्य लोगों तक पहुंचाते हैं उसके वजह से हम भी काफी सारे प्रभावित होते हैं. तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका प्यार, आपका काम करने का तरीका, आप लोगों के बीच में जाकर इस कठिन समय में भी विज्ञान का मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जिस प्रकार से प्रयास करते हैं वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करता है. तो मेरी पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर निधि श्रीवास्तव, विपिन सिंह रावत, पवन भाटी और मेरे सहयोगी डॉक्टर सचिन नरवाडिया, हम सब ने ये मान लिया है कि अब जब हमारे क्लब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भी विज्ञान प्रसार की तरफ से एक अच्छा प्लेटफॉर्म सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए. और जैसे आप सब समझ सकते हैं कि विज्ञान की वजह से हम ये कर पा रहे हैं. तो मैं उन सब लोगों का धन्यवाद लेते हुए मैं आज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करते हुए आज के जो हमारे मुख्य गणमाननीय व्यक्ति हैं जिनका आज हम लेक्चर सुनने के लिए जा रहे हैं, उनका परिचय करते समय मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है. जैसा आप समझ सकते हैं कि ये जो एक कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से आज हम अपने घरों में बंधे हुए हैं, लेकिन घर में बैठे हुए भी हमें कितनी सारी ऐसे चीजें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में हमें जानने की, समझने की आवश्यकता होती. अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम व्यक्तिगत रूप से और प्रत्यक्ष रूप से करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक हमारा प्रयास है कि इस सिचुएशन में भी आपके साथ नॉलेज रिसोर्सेज की कमी ना हो. आप लोगों को हर विषय के जानकार, उस विषय के बारे में आपके लिए समझने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कई सारे लोगों को हम समय समय पर आपके साथ लेके आएंगे. और आज उसी का एक प्रयास है जिसमें आज हमारे साथ
डॉक्टर संतोष कुमार पिंगले जी हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारा विज्ञान प्रसार का जो प्लेटफॉर्म है, this is actually for all India club coordinators, so it is essential for me to speak in a bilingual as long as I could, and I will also request our speaker to be both the language, so that because our clubs are spread right from the Kanyakumari to the Srinagar, right away from the Itanagar in Arunachal Pradesh to the Kutch in Bhuj. So I think this is very essential when we talk about such kind of an initiative. Then we need to have. I will not take much time, and I will directly go. Happy to introduce the speaker of today, Dr. Santosh Muralidhar Pingle. He is a scientist, as I said, at the Hydrological Investigation Division in National Institute of Hydrology, Roorkee, which is under the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration, which is under the Government of India. He has more than 7 years of experience in research and development and capacity building related to the water resources and hydrology. Before joining National Institute of Hydrology, includes water resources, climate change, hydrological modeling, and statistical analysis of watershed, sub-watershed, river basin scale using a different hydrological model such as a SWAT, WETSPA, and HBV model. Also includes the application of an advanced technique such as a computing technique, remote sensing, and GIS. He has a wide experience in application of statistical technique in water resource assessment with respect to the watershed, sub-watershed, and river basin scale using different hydrological models such as a SWAT, WETSPA, and HBB model. Dr. Pingle also served as an assistant editor in Hydrological Sciences Journal of an International Association of Hydrological Sciences and joint editor of Indian Journal of Hydrology, published by Indian Association of Hydrologists. He has published numerous research papers in the peer-reviewed international journal, and he has attended and presented a lot of research in the various conferences. He is also serving as an reviewer for many reputed international journals, also an advising graduates in the field of water resource and hydrology. In 2010, he was awarded with the Canadian Commonwealth Fellowship by the Canadian government and worked as a visiting research fellow in the Department of Civil and Geological Engineering, University of Saskatchewan, which is in Canada. He was a recipient of some renowned Indian fellowship, like a fellowship award awarded by Ministry of Human Resource Development, Government of India, for his PhD, Fellowship of Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, for his MTech. So we have got Dr. Santosh, who has a very versatile, biodata, and more important for all of us that he is the youngest, I would say, this researcher in the field of water resource management. और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि जितने नवयुवक हम लोगों के साथ मिले और हमें इस प्रकार की जानकारी दे, ताकि हमें उसके बारे में जानकारी के साथ साथ हमारा ज्ञानवर्धन भी हो। और आप सब जानते हैं कि हमारे सभी जो क्लब मेंबर्स हैं, उनके लिए भी करियर एस्पेक्ट के बारे में भी चर्चा हो। तो आज हमारे साथ संतोष जी का मैं स्वागत करता हूं, और मैं सब लोगों से जरूर आह्वान करूंगा कि डॉक्टर संतोष जी के लेक्चर के बाद उनके विषय के ऊपर जानने के लिए आप ढेर सारे सवाल पूछे। उनको आपके हर एक सवालों का जवाब देने के लिए हम उनको प्रवृत्त करेंगे। तो शायद हो सकता है आज का सेशन 5:30 की जगह 6 बजे खत्म होगा, बट मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूं कि हमारा ये प्रयास आप लोगों के लिए कितना सफल रहेगा वो आने वाला समय हमें जरूर बताएगा। और ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं डॉक्टर संतोष जी को अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। Good evening to all of you. And in the wake of coronavirus, like this is a good opportunity the organizers has given to me on the topic which is very relevant to the society as well as the human being. So not without taking time, I'm just starting my presentation.
So in today's lecture, I am talking about the importance of hydrological cycle and its implication on human life. In general, हम ऐसे कह सकते हैं कि जल चक्र का महत्व और मानव जीवन पर उसका प्रभाव। तो इसमें कई सारी चीजें हैं जो कि हमें इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको अनुभव करूंगा। So this is the outline of my lecture. First of all, मैं वाटर रिसोर्सेस जो जल संसाधन है उसके बारे में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताऊंगा। एंड उसके बाद हम चलेंगे जो मेन हमारा टॉपिक है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जल चक्र, कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस, हाउ दे आर अफेक्टिंग ऑन आवर वाटर रिसोर्सेस। उसके बाद हमें जानना है कि व्हाट इज द हाइड्रोलॉजी एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, व्हाट आर द डेटा रिक्वायर्ड एंड सो ऑन। तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द हाइड्रोलॉजी इज cycle is getting affected because of the climate change and land use land cover changes। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या हमारा लैंड यूज लैंड कवर चेंज हो रहा है तो वो कैसे हमारे वाटर रिसोर्सेज को अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में बताऊंगा। देन इम्प्लीकेशन ऑन ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो हमारे जीवन में, मनुष्य के लाइफ में ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का चेंज होने से उसका क्या असर होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर हम आगे चलेंगे। तो इफ यू सी द वाटर रिसोर्सेस, global fresh water resources, that if you see out of 100%, 97.5% water is in the form of salt water. In that 97.5%, 1% water, that is also it is in salt form, it is available in the land surface. So that water is not useful for us. Out of this 97.5%, the remaining water is only the fresh water, which is about 2.5%. तो इस 2.5% water में we have available glaciers, almost 68.7% water is available in the form of glaciers, in the form of groundwater 30.1%, and in the form of permafrost 0.8%, and surface and water, atmospheric water like रिवर में, स्ट्रीम में 0.4% है। तो आप इससे देखेंगे कि हमारे पास पानी बहुत थोड़ा है, फ्रेश वाटर, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए अवेलेबल है। इफ यू सी द वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे हम, तो वी हैव ओनली 2.4% एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, इफ यू कंपेयर विद द ग्लोबल, and we have population 17.1% out of the, that means in the global population, the 17.1% what population it is out of the what population world is having. So water is available 4%. So only 4% water we have available in Indian context. So here if you see the intensity, that how much resources we have and how much our population and geographical area, it is very vast. So here we will think that why water is so important. Like say हम बता सकते हैं कि हम water is very important for our economy. We cannot survive physically, as well as हम देखते हैं कि अभी तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है और हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रही है। तो इसका भी इसलिए भी हमारा वाटर का अस्तित्व और वाटर रिसोर्सेस एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो है सिटीज आर मोर अफेक्टेड than the rural areas due to the adverse impacts of the climate change, जो कि हम अभी जस्ट फेस कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि how this water problem is a, you can say, burning issue. If you see, there is a report from United Nations
that it is said that the 1.1 billion people in the world, they do not have access to the water. This is nearly, if you think of 20% of the population, total out of the total population. And it is also observed that इसमें ये पाया गया है कि almost 80% of the illness is caused because of the water related diseases. Also, it was also forecasted, or you can say that estimated, that in 2025, 75% of the population, world population, won't have reliable or clean water. So हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो जनसंख्या है और जल संसाधन, if you see, I think आप सभी को पता है कि these are the different continents available in the earth, that is Asia, Australia, Africa, Europe, North and Central America and South America. तो अभी हम देखेंगे, ये दिख रहा है जो पानी का ड्रॉप है वो बता रहा है कि in case of Asia 36% water resources is there, while the population is 60%. As compared to, if you see America, there is only 8% population and 15% resources. What this indicate? ये हमें बताता है कि हमारे पास पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन जल संसाधन तो बहुत कम है, और रिवर्स में हम अमेरिका जाए तो वहाँ पे रिवर्स है। तो ऐसी ही सिचुएशन हमारा जो आसियन कंटिनेंट है एज कंपेयर टू अदर कंटिनेंट बहुत ही भविष्य में उसका जल, यू कैन से इन केस ऑफ वाटर रिसोर्सेज देयर विल बी बर्निंग इश्यूज। सो हम अभी यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि these are the different colors. Like red color, it is saying that there is a extreme water scarcity, then the scarcity. Yellow color is indicating the stress, adequate, abundant and surplus. So if you see the India, हम भारत की बात यदि बात करते हैं तो भारत में ये water global per capita water availability is very less and it is under stress. So हमें ये इससे पता चलता है कि हमें बहुत कुछ इम्प्रूव करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भारत में पानी का जो उपयोग होता है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे इन इंडिया वी आर यूजिंग 80% वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इन केस ऑफ डोमेस्टिक 5% एंड इंडस्ट्रियल इट इज 15%. सो दिस इंडिकेट्स दैट वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज मेजॉरिटी ऑफ आवर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब हम कंपेयर करते हैं तो अब हम ये देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया में क्या डिफरेंस है। जो डेवलप कंट्रीज है, इफ यू सी दिस स्टैटिस्टिक्स दैट पावर दे आर यूजिंग 38% वाटर, इंडस्ट्री 11%, पब्लिक 10% एंड फार्मिंग 41%. इन केस ऑफ इंडिया इफ यू सी वी आर यूजिंग 85%. सो व्हाट दिस इंडिकेट, ये हमें बताता है कि हमें फ्यूचर में प्रोग्रेस करना है तो हमें हमारे रिसोर्सेज को रीप्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए कि ये स्लाइड्स हमें बताती है कि डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स वाटर रिसोर्सेज। तो राष्ट्र का विकास जो है हमारे जल संसाधन पर डिपेंड्स है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ कि वाटर रिसोर्सेज मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, water resources means it may be a precipitation, that is also called as rainfall, or it may be a river water, or it may be the streams, or it may be the groundwater. So these are the important water resources, as well as the springs. Springs are the lifeline for the mountainous region. So these are important water resources. So these are under pressure. तो हमारे पास ये चुनौती है कि हम अभी इसको सीरियसली लेना चाहिए ये चैलेंज, और हमें हमारा जो रिसोर्सेस है उसको, हमारा जो चैलेंज है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये बताना चाहता हूँ मैं कि अब हम देखें हमारे वाटर डिमांड बहुत बढ़ रही है डे बाय डे, और वाटर डिमांड इज इंक्रीजिंग फॉर डिफरेंट सेक्टर्स, बट आवर वाटर रिसोर्सेस आर कांस्टेंट, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, अदरवाइज एल्स दे आर just decreasing day by day. तो हमें इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान करना चाहिए। तो ये है मेरा जस्ट
to get an overview on our water resources and its significance. तो अभी हम बात करते हैं how we scientifically devise a knowledge on utilization of our resources and we will plan it properly by using the scientific knowledge. तो इसी प्रक्रिया में अभी मैं बताऊंगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इट्स कंपोनेंट्स एंड प्रोसेसेस. तो हिंदी में इसको बोलते हैं जल चक्र, घटक और प्रक्रिया. तो दिस इज एक यू कैन से कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो अभी मैं आपको डायरेक्टली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जाने लेने के बजाय मैं आपको पहले बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलॉजी. As I got information from the organizer that the most of the participants are from the academic background and they are basically the teachers. So hydrology is nothing but the science of water, which deals with the occurrence, circulation and distribution of the rainfall, or you can say the precipitation over a earth system. तो जो हमारा पानी है उसका ये बस सर्कुलेशन है, साइकिल में, ए साइक्लिक फॉर्म में अकर होता है, सर्कुलेट होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द लैंड सरफेस, अदरवाइज एज वेल एज द बीनीथ द सरफेस. तो ये जो हाइड्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी इज वेरी important for addressing the different problems, hydrologic problems related with the quantity and quality of the water. तो अभी हम देखते हैं कि पानी की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता, these two things are very important. So we all are doing all efforts to do or to maintain to these parameters. So here the understanding of hydrologic processes, it is very important for the water resources assessment as well as their management and conservation at administrative as well as the hydrological boundary scales like global or regional scales. I will come to the points, some points related with that later on. अभी क्या है कि how this hydrology is related with the other sciences, like hydrology is an interdisciplinary science. ये एक फील्ड का काम नहीं है, इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, जैसे क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी. सो दिस इज बेसिकली एन मल्टीडिसिप्लिनरी साइंस ऑफ वाटर. तो हम जनरली एप्लीकेशन कहाँ करते हैं हाइड्रोलॉजी का? Basically, we use the knowledge of hydrology in designing and operation of the hydraulic structures. तो hydraulic structures मतलब क्या कि जो हमारे डैम्स है, बड़े बड़े रिजर्वायर्स है, ब्रिज है, कल्वर्ट्स है, वो हम डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी हाइड्रोलॉजिकल इनपुट्स. फिर ये बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है. अभी मैं एक इतने सारे पढ़ूंगा नहीं, तो आप जस्ट इसको ओवरलुक कीजिए. तो नाउ hydrologic cycle. The hydrologic cycle is basically which describes the continuous movement of water on, above and below the earth surface. तो ये जो this is the hydrological cycle which starts from the ocean. Because of the solar radiation, water evaporates, then it just because of the it raises to certain heights and it forms a cloud. Then after certain processes that is called as the condensation. After the condensation means it changes its form from vapor to the liquid. Then some part of water it's get precipitated back onto the ocean and some part it transports through the landmass, from ocean to the land mass. And again because of the condensation and sublimation formations, again that water is get precipitated into the onto the earth surface, like on the in the form of the precipitation. And it again the part of water which is transported from ocean to the
it will just get precipitated back into the land ocean surface, and some part again it will reach to the land surface again in the form of surface runoff, snow melt runoff, and it will join again to the mainstream. So part of water, when it falls onto the land surface, it will fall on the trees. Then part of it will get evaporate from the land surface, from the plants and species plant, it will get transpired, and some part of water it will get into the infiltration. It will get into the infiltrated into the land surface, and it will join to the ground water flow. So this is basically the hydrologic cycle. The main source of energy source for hydrological cycle क्या है? वो सन, सोलर रेडिएशन के वजह से ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है. पानी ओशियन से स्टार्ट होता है, फिर इवापोरेट होता है, फिर पार्ट ऑफ वाटर गेट कंडेंस एंड देन फॉल ऑन टू द लैंड सरफेस. ये प्रोसेस चलती रहती है. तो बेसिकली इनमें 3 स्टेज होती है, लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड स्टेट. वो एट डिफरेंट प्लेसेस इट गेट्स ट्रांसफर. तो अभी मैं आपको एक जस्ट 3 मिनट का वीडियो है, हाउ द वाटर साइकिल दैट इज ए हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज देयर ऑन द लैंड सरफेस. इट्स हाउ इट इज कंटिन्यूसली चलती है. तो वो मैं आपको एक डेमो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप जस्ट इसको देख लीजिए. So this is an hydrologic cycle. Like see, now when there is a sunrise, sun जब होता है सूर्योदय, तो water get evaporates. Then at certain heights हम cloud बन जाते हैं. तो from that clouds, because of condensation, immediately कुछ part of जो water है वो land surface पे आता है. So, Santosh sir, I think your screen has gone. Oh. Yeah. Now it's coming? Yes, sir. Yes. Okay. So this is the just hydrologic cycle है, मुझे बताना है. अभी आ रहा है? Yes sir, yes sir. Okay. So ये बहुत इंटरेक्टिव है, जैसे ये इवापोरेशन हो रहा है और इवापोट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, और जो कुछ क्लाउड्स है वो अगेन in the form of rain it is falling onto the land surface. Like this. So part of the कुछ portion जो पानी का होता है वो in the form of again ये land surface पे गिर जाता है और it will get infiltrate and it will join to the groundwater flow. और कुछ पानी river से, छोटे छोटे नालों से, ये फिर ओशियन में join होता है. So this is basically an continuous process. So ये वीडियो मैंने प्रेजेंटेशन में भी दिया है, बाद में आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. Okay, like this. So this is just to give you the idea how the water cycle it is changing its phases from one phase to the another phase and so on. So any change, एक भी कंपोनेंट में आपके हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट्स में चेंज होता है तो उसका असर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर उसके अनदर आपके आउटपुट प्रोसेस पे हो जाता है. तो one or more parameters directly or indirectly it will affect our all these hydrological components. So यहाँ पे just
मुझे जस्ट यहाँ पे बताना है कि हाउ बिकॉज ऑफ द anthropogenic activities like human influences, natural activities, and how our water cycle is changing. तो इसके बारे में हम और देखेंगे। तो बेसिकली जो हमारी जो वाटर साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली प्रिसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, interception, evapotranspiration, slow melt, runoff and stream flow, surface storage, infiltration, ये बहुत सारी processes हैं। These are very important processes in the hydrological cycle. तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है और to go into the detail, but just to have a exposure on this, you can just see. तो अभी ये जो मेन पैरामीटर है, कंपोनेंट्स हैं, अभी इन कंपोनेंट्स को मेजर करना बहुत जरूरी है। तो मेजरमेंट एंड एस्टिमेशन ऑफ दिस हाइड्रोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट और ए फैकल्टी और ए टीचर, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये पैरामीटर मेजर करना है, तो ये इसका कहाँ से हमें मिलेंगे। तो डेटा कलेक्शन, फिर उसके बाद होता है इंपॉर्टेंट थिंग इज वंस यू हैव द डेटा, हाउ यू विल एनालाइज द डेटा। उसके बाद उसके इनिशियल प्रोसेसिंग, प्रिडिक्शन। तो कोई भी हम डेटा क्यों कलेक्ट करते हैं, उसका तो कोई पर्पस है। ओके, तो उसका पर्पस यही है कि हमें हमारे वाटर रिसोर्सेज प्लान करना है, तो हमें कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स। तो हाउ वी विल फाइंड दिस सॉल्यूशंस। तो हमें डेटा कलेक्ट करना है तो पहले उसको मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। सो हियर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल वेरिएबल्स वो हमें जरूरी है। तो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, सरफेस वाटर वेरिएबल्स, ग्राउंड वाटर वेरिएबल्स एंड वाटर क्वालिटी वेरिएबल्स। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में ये दीज आर द इम्पोर्टेंट यू कैन से मेजरमेंट्स वी हैव टू डू टू मेजर द वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा। तो हम जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा वी कैन कलेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, एक तो डेटा वी कैन डिराइव फ्रॉम द फील्ड। हम फील्ड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिवर फ्लो का डेटा है, ग्राउंड वाटर लेवल का डेटा है। फिर उसके बाद हम लैब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जहाँ से जैसे कि फील्ड से हमने कुछ सैंपल लाए, सॉइल के सैंपल लाए, उसको वाटर के सैंपल लाए और उसको लैब में एनालिसिस किया। एंड we can determine the physical properties of the soils. So this is like field and lab we can collect the data. दूसरा है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं फील्ड में बेस्ड ऑन दी मॉडल सेटअप, और वहाँ से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है कि आजकल आप देख रहे हैं कि जो जियोस्पेशियल टेक्निक्स है, दीज आर वेरी पावरफुल टेक्निक्स लाइक रिमोट सेंसिंग एंड GIS। तो हम जो सैटेलाइट इमेजरीज है वहाँ से हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सॉइल्स के बारे में, वेजिटेशंस के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, वो जो वाटरशेड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। एंड हम लोग फिर डेटा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स, कुछ हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स है तो उससे भी हम डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो हम जब इस डिफरेंट डेटा देखते हैं, तो इन केस ऑफ इंडिया व्हाट आर द सोर्सेस, इंडिया में कहाँ से ये डेटा मिल जाएंगे। जैसे आपको पता है, सबको पता होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ से हमको ऑल काइंड्स ऑफ वेदर डेटा मिलता है लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। फिर रिवर फ्लो का डेटा हमें सेंट्रल वाटर कमीशन से मिलता है। सॉइल का डेटा हमें नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर से मिलता है। लैंड यूज लैंड कवर का डेटा कुछ फ्रीली अवेलेबल डेटा है, कुछ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर से मिलता है हैदराबाद से। और जो ग्राउंड वाटर का डेटा है वो हमें जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है हमारा, वहाँ से मिलता है। सो इसी तरीके से डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डेटा इज देयर, वी कैन आगे। तो हम अभी देख रहे हैं कि वो those data. Santosh sir, sorry to disturb. Actually, someone is annotating on the screen. So there is one option on your window. You have to just click on the top view option. Okay. And you have to first annonate. There is one option annonate. You have to first
undo all the things, and then you have to stop. It is not going. I'm doing undo. Undo or clear. You can clear all it. Okay. Okay. Yeah. Okay. And there is one more option: stop participant to annotate. Okay. So Where it is? on the same view option only, there is one option. There is stop participant annotate. Disable or stop, something like that. No, it is Disable not. participant. It's not there. Okay. I'll just continue. No problem. Okay, sure. तो अभी हम जो डेटा है, जो हम कहाँ से वो डेटा कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए. तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है, हमें एक तो there are so many instruments. In this lecture, I cannot explore all these instruments. So some of those instruments, main instruments like automatic weather station है जो कि meteorological parameters measure करता है, pressure plate apparatus है जो soil के characteristics measure करने के लिए यूज होता है, जो टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर है वो सॉइल से रिलेटेड सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड हमें इनपुट देता है. इसी तरीके से देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर. सो सम ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स आई विल जस्ट शो यू. तो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स. लाइक जो रेनगेज है, शायद आपको पता होगा, रेनगेज में अलग अलग टाइप आते हैं, एक नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज. ये ट्रेडिशनल रेनगेज है, लेकिन आजकल इसमें इससे ज़्यादा हमें बहुत कुछ अच्छे रेनगेजेस आ गए हैं. फिर इसके बाद पैन इवेपोरोमीटर है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजरिंग द इवेपोरेशन फ्रॉम द फील्ड. फिर उसके बाद एनीमोमीटर है. फिर उसके बाद ये विंड वेन और अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर है. फिर ये इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस है. तो इसी तरीके से देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नाउ डेज अवेलेबल एंड दे आर गिविंग ए वेरी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. सॉइल मॉइस्चर प्रोब्स है. सो बेसिकली आपको इस स्टेज में ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या क्या मिलता है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अलॉन्ग विथ दिस इंस्ट्रूमेंट, लाइक वी विल गेट द डेटा. हमें डेटा मिल जाएगा, हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अलग अलग डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना और कुछ फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें कुछ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन इजीली एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन. तो अभी जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल फील्ड में, हाइड्रोलॉजी और वाटर रिसोर्स फील्ड में हम लोग जनरली कुछ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक एरडास, एनवी. These are used for image processing and land use land cover mapping. फिर ArcGIS यूज करते हैं, QGIS यूज करते हैं डेटाबेस प्रिपरेशन के लिए, स्पेशल एनालिसिस के लिए. फिर हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग टूल्स यूज करते हैं. तो ये मॉडलिंग टूल्स जो है, these are very important for identifying the problems and finding out the solutions. तो हमें इनसे काफ़ी इनपुट मिलता है, because we cannot go in the field for verifying or making a strategy very large scale. Like आपके पास कंट्री है या स्टेट है, तो आपको कुछ प्लानिंग करना है, तो आपको हर जगह पे आप हर टाइम नहीं जा सकते. कुछ पॉलिसी आपको कुछ सॉल्यूशंस देना है या कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए इन हाइड्रोलॉजिकल मॉडल्स की जरूरत होती है. तो अभी हमने देखा ओवरव्यू कि वाटर रिसोर्सेस और उसका सिग्निफिकेंस देखा. फिर उसके बाद स्टेटस देखा, और उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखा, और हाउ इट इज गेटिंग इंटेंसिफाइड वो देख लिया. तो अभी जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, हाउ दिस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और इट्स पैरामीटर आर अफेक्टिंग सो impacts of climate change and land use land cover changes on hydrological processes. So हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रियाओं पर जलवायु परिवर्तन और लैंड यूज लैंड कवर परिवर्तन का प्रभाव कैसे उसका इफेक्ट होता है, ये हम जानेंगे. तो उसके पहले हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है. आप देख रहे होंगे कि आपके एरिया में पहले बहुत बारिश होती थी और टेम्परेचर भी इतना नहीं रहता था एज कम्पेयर टू टुडेज global warming world. So climate change is basically a statistically significant variation of the climatic parameters, mainly the rainfall and temperature or the sea level. So it is basically a long term phenomena.
all over the world we are facing this change of climate change because of the different reasons. तो climate change कैसे होता है? Climate change is, there are two reasons. Climate change दो कारणों से होता है. एक तो natural factors like plate tectonics, solar output, orbital variation, volcanism, ocean currents. तो इनमें जब चेंज हो जाता है तो आपके क्लाइमेट में चेंज हो जाता है. दूसरा फैक्टर है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, मींस द मैन मेड फैक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है या अर्बनाइजेशन होता है तो या डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, ओजोन डिप्लेशन हो जाता है, फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इमिट होता है. तो दीज आर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर. तो अभी हम देखेंगे ये दो फैक्टर, नेचुरल फैक्टर एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर. वी कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन नेचुरल फैक्टर्स. हम नेचुरल फैक्टर्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं यदि हमको हमारे वाटर रिसोर्सेज चैलेंजेस को सॉल्व करना है तो. लेकिन हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ मिटिगेशन और एडाप्टेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे कि हम उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं. तो जी ये जो फैक्टर्स है तो हम नेचुरल फैक्टर्स के लिए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशंस के लिए कुछ कर सकते हैं. तो इसका जैसे कि हम चेंजेस इन लैंड यूज, लैंड कवर पैटर्न, डिफॉरेस्टेशन, लैंड क्लियरिंग, एग्रीकल्चर. So we can modify these factors and we can maintain the or you can say our ecosystem. So see, this is like now today's world we are facing big problem because of the anthropogenic activities which are affecting on our water resources. तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से क्या होता है? एक तो सी लेवल राइज हो रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है. दिनों दिन आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है. रेनफॉल का जो पैटर्न है उसका अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स वेरिएबिलिटी, स्पेशल एंड टेम्पोरल वेरिएबिलिटी, इट इज चेंजिंग. जहाँ पर पहले पानी नहीं होता था, बारिश नहीं होती थी, आजकल वहाँ पे बारिश होती है. और जहाँ बारिश होती है वहाँ पे बहुत कम हो गई है और ना का बराबर है. तो उसका होना, कम होना और टेम्परेचर बढ़ाना, it is not good for our ecosystem as well as our water resources. तो इन potential impacts of climate change, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे हमारा हेल्थ पे असर हो रहा है, एग्रीकल्चर पे असर हो रहा है, फॉरेस्ट पे असर हो रहा है, वाटर रिसोर्सेस आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस, कोस्टल एरियाज पे हो रहा है और स्पेसीज एंड नेचुरल एरियाज. तो इससे हमारा जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे काफ़ी असर हो रहा है. तो ये मैंने जस्ट यहाँ पे एक जस्ट दिखाया है कि व्हाट इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ द क्लाइमेट चेंज. सो आवर एक्सट्रीम्स आर चेंजिंग इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो अभी दूसरा कारण है कि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन. तो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए डिक्रीज इन परवियस एरिया. और तो उससे क्या होता है, परवियस एरिया डिक्रीज होता है और इम्परवियस एरिया इंक्रीज हो जाता है. तो जो कि पानी के लिए इन्फिल्ट्रेट होने के लिए उसको जगह ही नहीं रहती है. फिर लैंड इज लैंड कवर कंटिन्यूसली इट इज चेंजिंग. सो देन बिकॉज ऑफ दिस आवर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज बेसिकली urban hydrological cycle is changing and it is get affected. So ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि हम शहरीकरण करते हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो उसका हमारे जो रिसोर्सेस है उसका क्या असर होता है. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रीज है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि नेचुरल ग्राउंड कवर, यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, यहाँ पे नेचुरल ग्राउंड है. दूसरे पिक्चर में है आपका 10 to 20% इम्परवियस एरिया, जहाँ पे जो कि यहाँ पे घर आ गए, और इस केस में 20% रन ऑफ हो रहा है और पहले वाले केस में 10% रन ऑफ हो रहा है. तीसरा देखेंगे तो इम्परवियस एरिया 35 to 50% हो गया तो आपका रन ऑफ और बढ़ गया 30%. और इन वर्स्ट केस व्हेन यू आर
you are going for everything for urbanization, then your runoff is getting increased. Like 55% water is, whatever the rainfall is occurring, it is going out. That is 55% in the form of runoff और 30% evaporation हो रहा है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो how this urbanization influence the different components of the hydrological cycle. तो यहाँ पे हमने देखा, अभी क्लाइमेट चेंज देख लिया, लैंड यूज लैंड कवर देख लिया. तो क्लाइमेट चेंज और लैंड यूज लैंड कवर, ये दोनों हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है उसका अफेक्ट करता है. सो लैंड यूज लैंड कवर एंड क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंसेस द वाटरशेड हाइड्रोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस. तो हम जब वाटरशेड की बात करते हैं तो वाटरशेड मतलब क्या होता है कि इट इज बेसिकली कॉल्ड एज ड्रेनेज डिवाइड. तो जितना भी पानी होता है वो सब नदी नाले उससे इकट्ठा होकर एक कॉमन आउटलेट पे आता है. तो उसका जो रीच लाइन होता है उसको हम बोलते हैं कैचमेंट और वाटरशेड. तो ये जो कैचमेंट वाटरशेड जो है ये डायनामिक होता है, उसमें सेवरल प्रोसेसेस होती रहती है एट स्पेशल एंड टेम्पोरल केसेस. तो हमें कोई भी प्लान करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, आइडियल, सो दिस इज द आइडियल यूनिट टू एड्रेस द वाटर रिसोर्सेज इश्यूज कॉम्प्रिहेंसिवली. फिर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है. तो डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है, हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है वो यू कैन से वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग और हम उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं. तो उसका एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लैंड यूज लैंड कवर चेंज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज चेंजेस. तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंज होता है. इसका मतलब क्या होता है कि आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम, इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड ऑकरेंस ऑफ इंटेंस फ्लड्स, ये सब चेंज हो रहा है. तो आप इन जनरल देखेंगे तो इसमें अर्बन एरियाज आर मोर वनरेबल दैन दी रूरल एरियाज. सो बेसिकली हमें क्या करने की जरूरत है, यहाँ पे हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी लोकल लेवल पे जनरेट करने की जरूरत है जिससे कि हमें ये वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली मैनेज हो. तो यहाँ पे हम ये सब देख के ये पता चलता है कि हमें हमारा वाटर रिसोर्सेस प्रॉपरली प्लान करने के लिए हमें वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स आर नेसेसरी और पॉलिसी मेकर्स आर रिक्वायर्ड. they can study and they can manage properly our resources. So यहाँ पे दो पहलू है, एक तो है हमारे पास वाटर सप्लाई और दूसरा है वाटर डिमांड. तो हमें वाटर सप्लाई एंड डिमांड ये दोनों को सही तरीके से मैनेज करना है. हमें रिसोर्सेस भी मैनेज करना है और हमें डिमांड मैनेजमेंट के ऑप्शन भी लाने हैं जिससे कि हम हमारे वाटर रिसोर्सेस को सेव कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करके हम हमारा प्रॉपर तरीके से वाटर रिसोर्सेस मैनेज कर सकते हैं. तो अभी मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेस. तो ये है कि इन हिली एरियाज लाइक इन हिमालयन रीजन आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द स्प्रिंग्स, नेचुरल स्प्रिंग्स for their all these needs, different needs. Maybe it may be for agriculture or it may be for the drinking purpose. तो ये जो spring क्या हो रहा है over a period of year, these springs are getting dried. तो अभी and this is the same case with that of the groundwater. तो आपको शायद पता होगा groundwater is the hidden resource and in reverse way the spring water it is the lifeline for the hilly region. तो ग्राउंड वाटर जो हिडन सोर्स है वो दैट मीन्स ट्रेमेंडसली उसको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिससे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज पे उसका स्ट्रेस आ रहा है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी हैव टू मैनेज दिस रिसोर्सेज प्रॉपरली. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो उन सब को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए फिजिबल सॉल्यूशन. तो हम वो फिजिबल सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें बोथ देयर आर टू वेरिएबल्स सॉइल एंड वाटर. तो हमें ये दो वेरिएबल्स को मैनेज करना है प्रॉपरली, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, विच विल क्रिएट ए बेटर फ्यूचर फॉर आवर यंग कमिंग जनरेशंस.
तो अब दूसरा बात है, हमारा जो टॉपिक है कि हाउ दीज changes in hydrological cycle it will impact on our human life. तो implications on human life in on हमारा उसका हेल्थ पे क्या असर होता है, फिर वाटर स्कैरसिटी और वी कैन से द वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, उसके ऊपर क्या असर होता है. सो इट इज नो नीड टू एक्सप्लेन मोर. ये पिक्चर इटसेल्फ इट इज शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेल्थ, वाटर सिक्योरिटी एंड द फूड सिक्योरिटी. तो हमें आप देख रहे होंगे कि कंट्री में अभी रिसेंटली एंड रिसेंट पास्ट इन हिस्ट्री we are facing lot of problems related with the floods, droughts, and there are several issues related with the other disasters. So आपको यदि आपको इन सब जो disasters है उनको ओवरकम करना है तो प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी है. तो अभी हम देख रहे हैं कि आप सभी लोग ऑलमोस्ट सिंस मार्च वी आर in home, and that is why we are in home, because of the outbreak of the coronavirus. It is an very that means one of the natural disaster which is occurred in the recent time. Along with this disaster हम लोग देख रहे हैं कि साइक्लोन भी आ रहे हैं, हीट वेव्स भी आ रहे हैं, और जो लोकस्ट अटैक्स भी हो रहा है क्रॉस पे, वो हमारी फसल को डैमेज कर रहा है. अलॉन्ग विद दैट फ्लड्स भी आ रहा है. तो ऑल दिस नेचुरल डिजास्टर्स हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको अफेक्ट कर रहे हैं. तो दिस इज ए वेरी यू कैन से इज इट रिक्वायर्ड टू वरी. हमें चिंता करने की जरूरत है इन सब नेचुरल डिजास्टर्स को देखते हुए. तो अभी इन सब से हमें सीख लेनी है और हमारे वाटर रिसोर्सेज को सस्टेनेबल करना है. सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर मैनेजमेंट. तो वाटर सप्लाई एंड डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी इन सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये मेरे मन के कुछ विचार है कि वाटर सेक्टर एंड एसेंशियल सर्विस, जल क्षेत्र एक आवश्यक सेवा है, आप सभी को पता है. तो हमें क्या करना है, हमारे प्रायोरिटीज़ को रिफ्रेम करना है. अब हमारी प्रायोरिटी जो है, हमें प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी. हमें हमारे अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, हमें रिथिंक करना पड़ेगा और हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा. सो इन आवर लाइफ नाउ आपने देखा होगा कि जो पैंडेमिक सिचुएशन में वाटर का कितना महत्व है. उसका महत्व इसलिए है कि वो हेल्थ, फूड, ट्रांसपोर्ट, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक क्राइसिस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमें क्या करना है इन पैंडेमिक सिचुएशन में, आपको सुटेबल क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हम देख रहे हैं इसका जो प्रभाव है जो कोरोना का, तो वो इट इज़ मोर ऑफ इन अर्बन एरियाज. सो अर्बन क्राइसिस आर मोर बिकॉज ऑफ द कोविड. So here there is a chances of, or there may be water is scarce, most of the basic needs. तो हमें इन सब को देखते हुए एक मतलब दिस इज ए वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस, like maybe for planners, for municipalities, and so we have to integrate our resources, we have to design it properly, and we have to manage our resources smartly in urban areas as well as in the rural areas. So we have to follow the water sensitive approach. Okay, so because of this corona all the sectors are affect ho rahe hain, not only agriculture or the industry. So this is the opportunity to strengthen the governance and to prepare ourselves. तो अभी हमें क्या करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट. तो हमारे पास जो संसाधन है, जल संसाधन है या फिर दूसरे संसाधन है, उसको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. सो दैट ये जो मैंने आपको जो पिक्चर दिखा रहा हूँ कि सेंटर थीम ऑफ दिस पिक्चर इज टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन. तो अभी जैसे बारिश का मौसम आएगा तो हम इसको वाटर को हार्वेस्ट करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से
हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको हम ड्राई सीजन में या ड्राई पीरियड में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज हम आपका जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब जमीन जल पुनर्भरण कर सकते हैं जमीन के अंदर में। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करना चाहिए। तो मैंने एक जैसे ये यू कैन से द पीपल आर सिटिंग ओवर द स्टूल, ये सब लोग इस स्टूल पे बैठे हैं और दीज आर लाइक जानवर, जमीन, जंगल और जल, ये क्या है, ये इसके पिलर्स हैं। तो इन पिलर में से एक भी आपका पिलर टूट जाएगा और लेग पुल हो जाएगा तो ये सब कोलैप्स हो जाएगा। वैसे ही है, तो हमारे रिसोर्सेस मैनेज करने के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे करेंगे, तो बेसिकली ये हम जो वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो उसमें दो पहलू होते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चरल मेजर्स, दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या होता है, हम इंजीनियरिंग मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में हम वेजिटेटिव मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं। तो इसके जो अलग अलग टूल्स है वाटरशेड मैनेजमेंट के, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो इधर बताता हूँ। तो ये है, दिस इज द watershed, this is the watershed, and in the watershed like you will find different kinds of land use land cover means like आप एग्रीकल्चर भी फाइंड कर सकते हैं, फॉरेस्ट भी रहता है, इंडस्ट्री भी रहती है, अर्बन एरियाज भी रहता है, सब कुछ रहता है, रिवर्स और लेक्स भी रहता है। तो ये वाटरशेड्स को हमें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि आपको हम जो है लाइक अर्लियर वी हैव प्लान ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में हमें बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होंगे। तो अभी इन प्रेजेंट सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ये वाटरशेड है, तो वाटरशेड में जहाँ जहाँ पॉसिबल है अलोंग द स्ट्रीम, जैसे अलोंग द स्ट्रीम हम कुछ स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि जो भी बारिश का पानी हो रहा है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट स्पेसीज लगा सकते हैं जिससे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, लाइक यहाँ पे हम एग्रो फॉरेस्ट्री, कंटूर बर्न्स, मॉइस्चर कंजर्वेशन पिट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, इस तरह से। So this is a one like other way, like these are the engineering, some of the engineering measures as well as some of the biological measures. Depends on the availability of surface water, कितना पानी आ रहा है उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन से कहाँ पे करना है और उस वहाँ पे कैसा सॉइल का टाइप है और वहाँ पे कितना पानी आ रहा है और स्लोप कैसा है उस जमीन, वहाँ पर जमीन का। तो इन जनरल क्या है कि हमें now we are seeing that population growth and land use land cover changes are occurring tremendously. Migration of people is occurring from rural areas to the urban areas. Then rising standard of living people, energy demand हो रहा है, intensification of agriculture हो रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो हमें क्या करना है इन सब सिचुएशंस में, we need to, आपको यदि आपको वाटर सिक्योर्ड, आपको यदि सबकी डिमांड्स फुलफिल करनी है तो वी नीड टू हैव टू फॉलो ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो हमें तभी हम वाटर सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज द फूड सिक्योरिटी। सॉरी, am I audible? मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes sir, clear. ओके। तो ये जो चैलेंज है जस्ट इन डिफरेंट वे, तो मैंने एक हम क्या मेजर ले सकते हैं, जैसे एक थोड़ा कार्टून के जरिए मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो हमारे पास जैसे ये हम वाटर अलोकेशन कर सकते हैं, जैसे हम जो ये जैसे फार्म एनिमल्स है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री के लिए
हम वाटर अलोकेट कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। दूसरा है कि हम जैसे एग्रीकल्चर को पानी देना है तो हम उसको मेजर करके या उसको प्रॉपर तरीके से अलॉट कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इफेक्टिवली यूटिलाइज आवर रिसोर्सेस। सो ये सब, दिस इज ऑल अबाउट हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस ऑन ह्यूमन लाइफ। तो समरी में मैं क्या कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि पार्टिसिपेटरी वाटरशेड एंड वाटर डिमांड मैनेजमेंट अप्रोच इज की फॉर अचीविंग दी वाटर सिक्योरिटी एज वेल एज द फूड सिक्योरिटी। उसके बाद क्या है कि हमें हमारे जो लैंड कवर हो या क्लाइमेट चेंज हो तो उसका क्वांटिफिकेशन करना जरूरी है, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग ऑन आवर वाटर रिसोर्सेस। फिर एक है कि दूसरा कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, जैसे कि हमें स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैपेसिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेस, सो दैट लाइक पॉलिसी मेकर्स और द इंजीनियर्स और द स्टेक होल्डर्स, हमें पब्लिक को भी उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर इसमें हमने देखा कि हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर द बैकबोन ऑफ आवर वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो हमें हमारे जो डेटा कलेक्शन के टेक्निक है, इंटरप्रिटेशन के टेक्निक है, उसको सही तरीके से उसको इंटरप्रेट करना चाहिए और उसको मॉडल करना चाहिए यूजिंग दी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर दूसरा है कि हमें वाटर डिमांड मैनेजमेंट की टेक्निक यूज करनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कुछ टेक्निक्स, और सप्लाई मैनेजमेंट ऑप्शंस आल्सो अंडर द क्लाइमेट चेंज सिनेरियोज एज वेल एज इन द लैंड यूज लैंड कवर सिनेरियोज। फिर उसके बाद हमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के सिनेरियो और अप्रोचेस यूज करने चाहिए फील्ड में। सो इन समरी मेरा एक कहना है, जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे जो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक, उन्होंने कहा था कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशंस हु हैव ग्रेन्स एंड नॉट द गन्स। जो मैं थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके बताऊंगा कि हमारा जो भविष्य है, फ्यूचर बिलोंग्स टू द नेशंस हु हैव ग्रेन्स एंड वाटर भी बहुत जरूरी है हमारे ग्रेन्स के साथ। तो भविष्य उन राष्ट्रों का है जिनके पास अनाज और पानी है, न कि बंदूक। So this is all about my presentation. Thank you, sir. Thank you for the wonderful presentation. In very simple words, you have explained the science of hydrological cycles, its component, process involved, and its implications on human life. Now we will have few questions which are in the chat box. Okay. Okay, sir. There is one question from Mr. Amritanshu. He wants to ask, in the context of combating climate change, if moisture present from the air can successfully be converted into hydrogen gas, particularly at a large scale, won't it impact the hydrological cycle? It is being said, it will be beneficial to get rid of all this humidity in the air. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेस है, हमारे जो अर्थ में 97.5% वाटर इज इन सॉल्ट, दैट मीन्स सॉल्टी वाटर है, जो कि कोई काम का नहीं है। तो अभी हमें इसको प्रोसेस करना है तो काफ़ी सारा एक्सपेंसिव है, इसको प्रोसेसिंग इकोनॉमिकल नहीं है। वैसे ही हमारे आप जो बात कर रहे हैं कि हम जो गैस जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं है, तो इसमें अभी इतना हमारे पास इतना एडवांसमेंट नहीं आया है इंडिया में, तो एटलीस्ट, तो इसके थोड़े लिमिटेशंस हैं। थैंक यू सर। सर संजय कुमार जी पूछना चाहते हैं, वर्षा के जल को महानगर में कैसे संग्रह कर सकते हैं? ओके, ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। अब मैंने आपको एक्चुअली बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि देर आर डिफरेंट वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, लाइक हमने तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का देख लिया, उसके बाद एक आपने टर्म सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो शहरों में, गाँव में, जहाँ पे भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं।
तो उसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, वो आप प्रॉपरली उसको लगा के आप रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसका पानी आप डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हैं आफ्टर सम प्रोसेसिंग, और सम ऑफ द वाटर, कुछ पानी आप जमीन के अंदर में इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं, जो जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। ये Yes, sir. Thank you, sir. For the next question. Next question is from Amritanshu once again. He wants to ask that with reference to the visual slide Gupta and Chakrabarti 2019 from your presentation, you have elaborated about influence of urbanization and its fallout in later slides. I would like to ask you that is there any average time or order of magnitude that rainwater resides on a soil surface? Neither a kind of residence time or ponding time. I am looking at a natural soil, normal topography, moderate vegetation made of compacted clay in a temperate climate. तो मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिकली अर्बनाइजेशन होने से क्या होता है कि आपका इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है और सरफेस रन अप बढ़ जाता है। तो ये नेचुरल कंडीशन में इसका प्रोपोर्शन इनिशियली वो तो ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही उसका जैसे ही इम्परवियस एरिया में कन्वर्ट होता है तो उसके सॉइल के प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। तो इससे हमारा इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर भी उसका इफेक्ट होता है और उससे फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज अफेक्ट हो जाता है। और जितना भी पानी, बारिश का पानी बरस जाता, रेनफॉल हो जाता है, वो सब बह के नदी नालियों में निकल जाता है। तो हमें जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करना चाहिए बेस्ड ऑन दी हमारे एरिया में कितना पानी होता है, बारिश आती है, उसके हिसाब से आपको ये स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करने हैं। शायद मैं कुछ आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा तो आप मुझे ईमेल से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। Sure, sir. We will give your mail ID to our club members so that if any query left, they can ask to you directly. There is one more question from Mr. Odelu Kumar. He wants to know about artificial rain, sir. Okay. Actually, I'm not much more like in India. We don't have so much of experiments. There are some experiments in the last few years the government has done on artificially हम कैसे बारिश करा सकते हैं। जैसे कि हम सोडियम क्लोराइड का यूज करके हवा में कुछ मतलब जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स हो या उसके थ्रू हम स्प्रे कर सकते हैं और हम आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं। लेकिन इन सब टेक्निक जो है वो अभी सब प्राइमरी स्टेज में है, अभी उसमें इतना हम सक्सेस नहीं अचीव कर पाए। So these are the areas we need to improve ourselves. But thank you. Okay. Thank you, sir. I think we have answered most of the questions. So, Dr. Pingle, is there anything else you want to mention at the end? Okay. In concluding your session. तो एक्चुअली मुझे जो आपने जो बताया था ऑर्गेनाइजर की तरफ से कि ये जो सेमिनार है ये बेसिकली टीचर्स के लिए है, तो मेरा कहना है कि आप जो टीचर्स हैं, आप जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अभी आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट इज़ वेरी न्यू फॉर देम और इवन मे बी फॉर यू ऑल्सो। तो जैसे हम एक छोटा सा प्लांट होता है, प्लांट को हम डेली कुछ पानी देते हैं, वो बड़ा हो जाता है, फिर भी हम पानी देते हैं, फिर वो तभी हम उसका मतलब हम उसको खाद्य देते हैं और पानी देते हैं। उसी तरीके से इवन स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो या टीचर्स हो, हम आप सब ने बीच बीच में ऐसे सेमिनार अटेंड करके आपके नॉलेज में मतलब इंक्रीज करके कैपेसिटी बिल्डिंग करके स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, हमारे जो भविष्य के जो यंग माइंड्स हैं उनमें ये पहले से ही रुचि रहेगी। तो जो एडवांसमेंट करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, तो
इन फ्यूचर आप सभी को पता है वाटर सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट इश्यूज विल बी देयर एंड बाकी सब इश्यूज गॉन है। तो इस संदर्भ में मैं आप सभी को एनकरेज करता हूँ कि आप उसको लीड लें। Thank you so much, sir, for motivating us. Now we are privileged to have our director, Dr. Nakul Parashar, with us. I would like to invite sir to say a few words. Nakul sir. Nakul sir, can you listen me? I think sir is not here. He is busy in some meeting. Arvind sir, will you like to take over from here? No, I think wonderful presentation. संतोष जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सबको जानकारी दी है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे सामने किस प्रकार के चैलेंजेस या चुनौतियां हमारे सामने कैसी है। जैसे अगर मैं अपने शब्दों में, जो संतोष जी ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है, उसको अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं, तो मुझे याद है कि उन्होंने जो पहली स्लाइड बताई थी कि अगर हम धरती पे 100% पानी है और उनमें से लगभग 97.5% पानी तो नमकीन पानी है, जिसका उपयोग हम कभी किसी काम के लिए शायद ही कर पाए, लेकिन जो बचा हुआ 2.5% का पानी है, उसी के बारे में कितना कुछ हमें उसका संगोपन करने की आवश्यकता है। हमारे लिए हर काम के लिए वही पानी काम आता है, तो इसलिए हमारे पास जिस प्रकार से भी पानी को, जिसको हम पोर्टेबल वाटर कह सकते हैं, उस पानी के लिए हमें क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से हमें पानी का संरक्षण करने की आवश्यकता है, उन्होंने इसका बहुत अच्छे तरीके से हमें एक उद्बोधन दिया। And he was also explained to every one of us that how these water resources whatsoever are available through various means and mode need to be preserved, and how cautious we all should be. So that is really very, very important. And this presentation perhaps must have given a good idea to all the newcomers, those who would like to contribute in this field of hydrology, wherein he has very elaborately said that what are all the challenges that we are facing from every corner, and the country like us, who is largely dependent on the agricultural landmass, and we still have a huge challenges when the population is so high. So I think in this aspect, his talk has made us really understand that how we all should be cautious about every resources that is there, available by the nature, and if we are not going to be serious about it, what are the implications that we are going to face. So I really would like to say, on behalf of my team, certainly our Sachin Narwadia ji will express the vote of thanks on behalf of Vigyan Prasad. But I personally also would like to say, the person like Santosh ji, who is young to all of us, because as the seniority goes, the people also feel little hesitant to ask the question. So being a young person, we can always try to get connected with the youngsters. Even we get into the fault, the youngsters will not mind much. So I consider that having youngsters in our lecture series is something going to help in the larger scale in the days to come. So संतोष जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, लेकिन हमारी तरफ से डॉक्टर सचिन नरवड़िया जो है हमारे सहयोगी हैं, वो आपको सबको धन्यवाद देंगे। तो मैं चाहता हूँ हमारे निदेशक महोदय जी भी बड़े एक्टिव रहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जितना भी समय उनको मिला होगा, उन्होंने आपका व्याख्यान पूरा सुना होगा। शायद अब किसी बैठक में होंगे तो वो नहीं हमसे रूबरू हो पा रहे, बट वो हमेशा ही सतर्क रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी सचिन जी एक वोट ऑफ थैंक्स को एक्सप्रेस करें सबके लिए, और फिर हम इसके कंक्लूजन पे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी, आपका लेक्चर का जो टॉपिक है वो हम सबकी जिंदगी से, हमारे अंदर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर तो पानी की जरूरत है ही, लेकिन हमारे शरीर में ही 70% से ज़्यादा पानी होता है, और उसकी कमी होने से सीधा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो पानी और वाटर की जो ज़रूरत है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और आपके लेक्चर से हमें काफ़ी इन डेप्थ जानकारी हमें मिली हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, और वाटर बैलेंस, कंपोनेंट्स, क्लाइमेट चेंज, इन सब को आपने एक नटशेल में समराइज करके बताया, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे डायरेक्टर सर नकुल पराशर जी, अरविंद जी और पूरी टीम विपनेट की इस लेक्चर के पहले से तैयारी करती है।
डायरेक्टर सर के गाइडेंस में हमने सबने इस लेक्चर की बहुत तैयारी की और सारे विपनेट क्लब्स के मेंबर्स को मोटिवेट किया, रिमाइंडर्स भेजे ताकि वो ज्वाइन करें। और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन का महत्व होता है, इसलिए सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। निधि मैडम। आई थिंक निधि मैम के नेटवर्क खत्म हो गए, तो संतोष सर इफ यू कैन कंक्लूड। जी, I think thank you so much for everyone. Thank you so much for joining on this lecture series. I request all our VIPNet clubs to keep yourself free on every Tuesday from 4 to 5:30 so that we can bring enormous number of young researchers in the field of various sciences that we which are very close to us. So we are going to be bring versatile personalities like Santosh ji in a days to come who will talk to you. हम सबको ज्ञानवर्धन भी करेंगे, नए नए चुनौतियों के साथ हमें इस विषय के बारे में जानकारी लेने के लिए हम अच्छे अच्छे वक्ता लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सबको धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।